Um, so good afternoon, dear student. So today we are going to be start, or we are going to be discuss um, a new chapter in second unit, shear force and bending moment. So shear force means you can say the vertical force acting on the beam, which is responsible for or for the shearing action in the beam, or for the shearing of the beam. So that is called shear force, which is produce the shear of effect, you can say. And bending moment, the moment which produce the bending or try to bend the beam, that is called the bending moment. So let's discuss on detail. The first would like to be discussed with the support. What kind of support, available support, or very famous this kind of support are widely used um, in the strength of material or design consideration. So support is what? To wear or hold up a load, mass, structure, part, it, etc. Serve as a foundation or base for any structure. So a simple now you are almost you have understood that the support वो कहलाता है जो क्या करे किसी भी किसी लोड को, किसी मास को, किसी स्ट्रक्चर को या पार्ट ऑफ दैट को उसको उसको वियर करे, उसको वियर करे या होल्ड करे. एंड ऑल्सो इट कैन सर्व एज अ फाउंडेशन और बेस फॉर एनी स्ट्रक्चर. So such things is called the support. So few example is given here: roller support, hinge support, and fixed support. So first one, if you discussion on that roller support. So roller support, you can see this one is the roller. You can see this is the roller support. So there is a roller is there. So if there's this kind of support, if it provided below the brace, if the load is moving above the bed, so this support, roller support, allow to move in the horizontal direction. So expansion and contraction of bridge can be eliminated by this, okay, by this roller support. But you can see, because this roller can be moved in the horizontal direction if the load is abound, matlab, this is free to move in the direction of horizontal direction. So in horizontal direction there is no reaction force. But if talking about the vertical, इस direction में अगर ऊपर से load लगाओगे, so a reaction will act. You can see a reaction is acting here. So this is if you replace this roller, so free body diagram you can see like this. This is a reaction force vertically upward direction. So similarly what we have done in the second case, अब आपने इसको इस तरह से कर दिया. सपोज इसमें ऐसा लोड लग रहा है तो इस डायरेक्शन में इट कैन मूव कर जाता है और इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन अप्लाई करेगा सिमिलर टू दिस. Okay, the hinge one, you can see the hinge. This you have seen everywhere. All the door is like this. सारे डोर ऐसे ही होते हैं, आप उसको धक्का मारते हो खुल जाता है. इसका मतलब ये है कि इट देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द रोटेशन वाला इसका फ्री है और सिर्फ ऐसे ही है, हो सकता है. तो अब दो रिएक्शन इसमें लगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस के अराउंड, ठीक है. सो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम. अगर कहीं पर आपको हिंज को रिप्लेस करना हुआ तो हिंज सपोर्ट कैन बी रिप्लेस बाय द वन हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड अदर इज वर्टिकल फोर्स. अगर रोलर को रिप्लेस किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ेगा. यू हैव टू बी अप्लाई दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम एंड दिस इज आल्सो अ फ्री बॉडी. एंड लास्ट वन इज द फिक्स्ड. फिक्स में क्या होता है, ये फिक्स हो गया, ये पूरा फिक्स हो गया.
अब फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एंड मूवमेंट तीनों लगाना पड़ेगा अगर आप इसको रिप्लेस करते हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फिक्स इज लाइक दिस। कौन कौन से फोर्स लगते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और एज वेल एज अ मूवमेंट आल्सो। सो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कहीं अगर फिक्स फोर्स को आपको फिर इसको रिप्लेस करना है बाय फ्री बॉडी डायग्राम में फिक्स को, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब भी फ्रिक सपोर्ट हटेगा वहां से, तो वहां पर आपको दोनों रिएक्शंस लगेगी, हॉरिजॉन्टल वाली भी वर्टिकल वाली भी। हालांकि वर्टिकल की जरूरत हमको नहीं, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जरूरत का यूज नहीं है इन shear force and bending moment में, because the horizontal force is not responsible for shear force and bending moment. So but in theory but logically we have to be remember this concept. If there is a fixed support, if replace that support, you have to be apply the both reaction in horizontal vertical as well as the bending as well as the moment not, ठीक है। So आप इसको देख सकते। So hope you understood this type of support. Then beam. So beam basically simply we can define the any horizontal member of the structure which is capable to transform the bending moment. तो उसको beam बोलते हैं, simplest definition है। और definition ये एक है, a beam is a structure member and that should be a horizontal and that is designed to support the applied load, या applied load means नीचे से जो vertical load है, and it resists the applied loading by combination of internal transverse shear force and bending, ठीक है। So whatever the shear force acting on the beam और bending moment acting on the beam, उसको ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, बीम उसको रजिस्ट करती है। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द बीम। सो बीम की ये टाइप्स हैं, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, फिक्स्ड एंड कंटीन्यूअस, ठीक है। सो पहला केस है आपका कौन सी, कैंटिलीवर। सो अ बीम विच इज फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। अब देख लो इधर क्या होगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है, एक साइड से फिक्स, ये देखो फिक्स है, एक साइड इतना पूरा फ्री है, तो ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैंटिलीवर है। और ये नीचे ये वाला पार्ट भी देख लो, ये बहुत ज्यादा आगे निकला हुआ है, तो ये जो बीम है इसको सपोर्ट कर रही है नीचे से, दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर। एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, आप सिंपली सपोर्टेड का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल यू कैन सी दैट, ये एक बच्चा है, इसने यहाँ से यहाँ तक ये लकड़ी का एक कॉलम को ऐसे रख दिया, मतलब अब ऐसा रखा है तो बीम ही होगा, खड़ा कर दे तो कॉलम हो जाएगा। सो इस तरह से उसको रख दिया लकड़ी के पीस को, तो अब इसमें इससे इधर से उधर जा सकता है। तो सिंपल रख देना दो चीज, दो उसके बीच में, दो स्पेस के बीच में, ठीक है, तो ये कहलाता है सिंपली सपोर्टेड। तो अब a beam supported or resisting freely on support, it's both end। देखो बोथ एंड ऐसे सिंपल रखा हुआ है, यहाँ पर भी देख लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम में, ये बीम सिंपली इस दो सपोर्ट के ऊपर रखी हुई है, इसके बाद दूसरा सपोर्ट चालू होगा, तो इस तरह का अरेंजमेंट सिंपली सपोर्टेड। फिक्स्ड, ये देखो फिक्स्ड बीम में वी हैव फिक्स्ड बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसको फिक्स कर दिया है ना, ये वाला और ये साइड। और लाइबिली देखना है तो ये स्ट्रक्चर ये दिल्ली में बहुत मिलता है, दिल्ली में सारे चौराहे हटा दिए गए हैं। मोस्टली इस टाइप का अरेंजमेंट है कि एक इधर की गाड़ी नीचे से निकल जाए, उधर की गाड़ी ऊपर से निकल जाए। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड बी इज कैन कैन से दिस इज फिक्स बीम, है ना। अब बीम जिनके दोनों साइड आपका फिक्स हो वो फिक्स बीम कहलाती है। और ये क्या करती है, रेस्ट्रेन द अगेन द रोटेशन एंड वर्टिकल मूवमेंट, सब कुछ रेस्ट्रेन कर देती है। सो यू ऑलरेडी डिस्कस ऑन दैट। सो फिर ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम कब होती है, जैसे ये बीम थी, अगर यहाँ फिक्स हो जाती तो वो कैंटिलीवर कहलाती, दोनों साइड फिक्स हो जाती,
तो फिक्स बीम कहलाती है। अब क्या है, ये सिंपली बीम को लाए और रख दिया, ये है तो सिंपली सपोर्टेड, बस सिंपली सपोर्टेड में ये वाला यहाँ होता, लेकिन अब क्या कर दिया, थोड़ा सा पार्ट बाहर कर दिया, तो ये हो गया ओवरहैंग, ये बाहर थोड़ी सी बाहर चली गई, तो दिस इज कॉल्ड है ओवरहैंग। और कंटिन्यूअस बीम वो बीम स्ट्रक्चर होता है जहां पर दो से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम। यहाँ देखो, ये तो फिक्स था, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, और आगे जाए तो और कर दिया, तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो कंटिन्यूस, ये देख लो यहाँ, ये स्ट्रक्चर जो बना है, कई सारे छोटे यहाँ बीम, यहाँ 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 सॉरी पिलर लगे हुए हैं, तो वो उसके ऊपर ये सपोर्ट प्रोवाइड होती है, ये ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस। सो इस तरह से हमने देख लिया टाइप्स ऑफ बीम ऑल्सो। सो बट आपके लिए खुशी खुशी की बात यह है कि सिलेबस में आपको सिर्फ दो ही टाइप का पढ़ना है, एक सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूबल, और नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। फिर टाइप्स ऑफ लोड, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये तीन तरह के होते हैं, आपको पढ़ना ऊपर के दो है, लास्ट वाला पढ़ना भी, ठीक है, ये नहीं है दोबारा। तो कंसंट्रेटेड लोड आप देख सकते हो, उसका नेचर क्या है, एक ही जगह पे बिल्कुल लग रहा है, ना मोशन है ना कुछ है, स्टैटिकली रखा हुआ है, आप एक जगह चेयर में बैठ जाओ, हिलो डिलो नहीं, तो आप भी पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड हो जाएगा। कोई भारी वेट एक जगह पे रखा हुआ है, वो कंसंट्रेटेड लोड हो जाता है, ठीक है, उस समय पर्टिकुलर पॉइंट पे उसमें कोई मोशन नहीं हो, तो उस तरह के लोड कंसंट्रेटेड लोड कहलाते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब जो वेट, जो लोड जो लग रहा है वो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि किसी चैनल में पानी, वाटर का जो फ्लो होता है, और नीचे ये वाला सरफेस जहाँ फ्लो हो, मान लो ये वाला सरफेस बिल्कुल सी वो हो, एक जैसा हो, तो इस तरह वो इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली लोड एक्टिंग ऑन दैट, है ना, इस तरह से। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, यू कैन अंडरस्टैंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, देखो वेरी कर रहा है यूनिफॉर्मली एक सीक्वेंस में, अगर यहाँ से दिखाते हो तो आपको एक इक्वेशन बन जाएगी, तो इसमें एक सीक्वेंस के साथ इस तरह से लोड बढ़ता जाता है एट द एंड, तो सच काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब एक चीज और इसमें है, साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, तो अब ये जो इसको समझिए, साइन कन्वेंशन फॉर द शेयर फोर्स, मैं इसमें और डिस्कशन करने वाला हूँ आगे उसमें, अभी जस्ट समझ लो कैसे साइन कन्वेंशन होते। तीन साइन कन्वेंशन यहाँ चलेंगे, एक शेयर फोर्स का, एक बेंडिंग मोमेंट का, और एक सिंपल मोमेंट का, जो आप अभी तक करते आए हो, वही वाला, वो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं साइन कन्वेंशन कुछ कुछ बुकों में अलग टाइप से भी रहता है, कुछ बुक में जैसे इसमें दिया है वैसा है, कुछ में कैसा रहता है मैं भी चेंज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने ही, ऐसा है, मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, पर सही दोनों है। इस तरह से चलो अब समझते हैं। लेफ्ट साइड सेक्शन, राइट साइड सेक्शन, समझ समझो, अगर कोई ये देखो बीम है और इसमें हमने सेक्शन कट कर दिया, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मेरे को इस पर्टिकुलर जहां पर ये पिंक लाइन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी हैव, आई वी वांट टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, दोनों निकालना है। तो इस लाइन के राइट साइड से जो फोर्स ऊपर से लगेगी, देखो जरा, जो फोर्स ऊपर से लगेगा इस लाइन के राइट साइड, राइट साइड इस लाइन का क्या हो गया, मेरा ये राइट है, जो नीचे की ओर लगेंगे, मतलब अगर नीचे की तरफ कोई भी फोर्स लग रहा है लाइक दिस, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव,
ये इसका मतलब। दूसरा, अगर राइट साइड की बात करूं, इस तरह से सेक्शन लूं, तो जो नीचे से ऊपर मतलब ये ऐसे फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा निगेटिव। ये हो गया निगेटिव, ये देख लो, ये निगेटिव शेयर बोल रहा है, ठीक है, निगेटिव ये वाला। उसके बाद यू कैन सी, इफ यू कंसीडर द लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड में जो नीचे से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो होगा पॉजिटिव। ये देखो, नीचे से ऊपर वाला होगा पॉजिटिव, एंड इधर से ऊपर से नीचे वाला होगा निगेटिव। तो इसको बहुत आसानी है, अगर ये याद है, देखो पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव होगा अपोजिट वाला, और फिर ये दोनों निगेटिव। तो इस तरह से राइट साइड टॉप पॉजिटिव, और ये क्रॉस क्रॉस अगर बीच में है, तो आपके राइट साइड सेक्शन में ऊपर से नीचे पॉजिटिव और नीचे से ऊपर निगेटिव, एंड लेफ्ट साइड सेक्शन में नीचे से ऊपर पॉजिटिव और ऊपर से नीचे निगेटिव। ये छोटा सा साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। ये तामझाम नीचे का नहीं याद रहे तो ये छोटा वाला ऊपर का सिर्फ डायग्राम याद रखो, एक लाइन खींच लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, इस तरह से। तो दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर द शेयर फोर्स, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे इसके बाद द बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट के लिए हम जो साइन कन्वेंशन इसमें पढ़ने वाले हैं, समझो। मान लो ये आपकी एक बीम है, और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे बोला जाए वहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो एक लोड ऐसे लग रहा है यहाँ से, ऐसा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसको फिक्स करोगे, हिंज करोगे, तो ये कैसे लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और यहाँ से भी एक लोड ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या करेगा, देखो जरा, चाहे यहाँ मान लो सेक्शन है, मानने में क्या है, यहाँ मान लो सेक्शन है, तो ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये ऊपर की तरफ। जब भी ऊपर की तरफ मूव करेगी आपकी बीम, तो वो पॉजिटिव होगी, और जो भी नीचे की तरफ आपकी बीम मूव बेंड होगी, तो वो होगा निगेटिव। और जब बीम बेंट अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड की तरफ ऐसे जाती है, तो उसको कहते हैं केस ऑफ सैगिंग। और एंड सैगिंग इज ए पॉजिटिव, ठीक है। सैगिंग को होता है पॉजिटिव रखते हैं, और हॉगिंग को रखते हैं निगेटिव। ये हैप्पी एंड सैड ऐसा कुछ है कि एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं लोग, ऐसे ही याद किया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे सैगिंग को, अगर, ओहो, जी देखो, तो इस तरह अगर ऊपर की तरफ हैप्पी स्माइली फेस बन रहा है ऐसे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो वो हो गया पॉजिटिव। और अगर सैड है नीचे की तरफ ऐसे, इस तरह से, तो वो हो जाएगा निगेटिव। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो उसको, और ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना। तो एक में कैसा हैप्पी फेस, दूसरे वाले में आपको होगा सैड का फेस, ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से भाई आपको अगर सैगिंग हो रहा है और हॉगिंग देखना है कि हॉगिंग हो रहा है कि सैगिंग हो रहा है। सैगिंग मीन्स पॉजिटिव, हॉगिंग मीन्स निगेटिव। तो ये है सिंपल सिंपलेस्ट साइन कन्वेंशन फॉर दी, इसके लिए बीम के लिए, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सिंपल साइन कन्वेंशन, सॉरी सिंपली सपोर्टेड नहीं, हर कोई भी बीम के लिए अगर शेयर फोर्स एंड क्रॉस शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम निकालना चाह रहे हैं दोनों के,
तीसरा साइन कन्वेंशन जो आप बहुत फैमिलियर हो, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर दी मोमेंट। अब मोमेंट क्या होता है? मोमेंट आपको पता है ना क्या होता है? ये मोमेंट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेयर यू वांट टू बी कैलकुलेट द मोमेंट। जिस पॉइंट पर आप मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट की जिस फोर्स के कारण मोमेंट कितना हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोमेंट मिल जाता है। तो मोमेंट में कैसे हम चलते हैं, अभी तक क्या कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मोमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इफ इस तरह की सिचुएशन है, मान लो कि सपोज एक बीम है और यहाँ पर ऐसे हम मान लिया किसी, तो यहाँ से लोड लग रहा है, तो इसके केस में ये तो क्लॉक, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इधर घुमाएगा, इस तरफ घुमाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स निगेटिव, और इसका अपोजिट क्लॉकवाइज और दैट इज पॉजिटिव। तीनों तीनों साइन कन्वेंशन तीनों साइन कन्वेंशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट, फॉर द शेयर फोर्स एंड फॉर द सिंपल मोमेंट का याद रखना। फोर्स का आपको पता है, अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स जो जाता है, मूव करता है, फोर्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल शेयर फोर्स की नहीं बात कर रहा हूँ। सिंपल फोर्स की अगर बात करोगे तो ऊपर के मूव करता हुआ फोर्स एक्स वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस का पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। अगर इन दोनों फोर्स का इफेक्ट देखना है किसी भी प्लेन में, तो आपको साइन के साथ इनको उठा के जोड़ना पड़ेगा। यही होता है, यही तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से फिर से रिकॉल कर लिया आपने मोमेंट, फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो जो सिंपल फोर्स होते हैं ना, वो फोर्स शेयर फोर्स को बनाते हैं, जन्म देते हैं इन केस ऑफ बीम, ठीक है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग ऑफ द बीम, ठीक है। और बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो बीम को बेंड करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। इसीलिए शेयर फोर्स की जो यूनिट होती है वो फोर्स के जैसे ही होती है, बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होती है वो मोमेंट जैसे होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको होप समझ में आ गया होगा। और ये